تعصب پہ نظر چڑھ گئی اور اس کو ایک مسلمان کی زبان سمجھی جانے لگی، جبکہ اردو جو ہے فارسی بھی ہے، اردو جو ہے سنسکرت بھی ہے، اور اردو تمام ٹرکش بھی اس کے اندر آتی ہے، تمام زبانوں سے مل کے عربی بھی ہے، سب بنی ہوئی ہے، اور اردو ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دلوں میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں تمام اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت قاسم صاحب کو میں خصوصی طور پہ جو ہے ان کو جو ہے اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، مظہر آصف صاحب کو، کہ اتنا اچھا آپ لوگوں نے پروگرام یہ لگاتار تیسرے سال آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ مبارکباد کو دیں گے، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت کم وقت میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی بات کہی۔ فلسفہ ایک الگ سی بات ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے پہلو اتنے ہیں کہ اگر دین سے جوڑا جائے تو پوری طرح دین ہے، دنیا سے جوڑا جائے تو پوری طرح دنیا ہے۔ اگر علامہ اقبال کو روحانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے محدث تو اپنی زبان کے کہہ لیجیے، انہوں نے شکوہ لکھا جو اللہ رب العزت کے حضور وہ شکوہ تھا، اور جب جواب لکھا تو وہ تمام انہی سوالوں کا جواب تھا جو سوال ان کے پاس آئے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس کی آج یوم پیدائش ہے، اسی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ ہندوستان ہمارا لکھا، اور اس انداز کا شاعر جو قومی ترانہ لکھتا ہے، اور جب ان کو ملک سے محبت ہوتی ہے، پوری دنیا میں انہوں نے گھوم کے اسلام کا بھی جائزہ لیا، ان کی قلم ایک کمرے میں بیٹھ کے نہیں چلی، انہوں نے مسجد کربلا دیکھا جو آج دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی اور آج دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے، تو وہاں اس پر جو ان کی نظم ہے، بچوں کے لیے انہوں نے جگنو لکھ دیا، لگتی ہے دعا لکھ دیا، انہوں نے جو لکھا وہ امر ہو گیا، اور ہم آج جو کچھ منا رہے ہیں ان کے نام کا، اگر ہم صرف منا کے رہ جائیں گے، حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، تو آگے بڑھنے کا کام نہیں کریں گے، تو کمزوری ہماری ہے۔ ہم یہاں سے اس لیے یہ پروگرام 3 سال سے لگاتار ہم لوگ کر رہے ہیں کہ تعلیم سے جو رشتہ ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کا، وہ بھی بہت بڑا ہے، اور علامہ اقبال صاحب کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہمارے دائش پر سرفراز خان صاحب ہیں، چیئرمین ظفرآباد، ہمارے بھائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آج کے پروگرام میں تشریف لائے، ان کو مائک پر بلا رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب وکیل نذیر اسکول کے ہمارے مالک، ہمارے دوست جو تعلیم کے سلسلے سے اس پروگرام میں تشریف لائے، ان کا بھی خیر مقدم اور استقبال اس پر میں۔ آئیے ڈاکٹر سرفراز خان صاحب تشریف لائیے اور اپنی گفتگو کیجیے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہماری 10-15 سال کی محنت کو سمجھا، اور میرے ڈائریکٹ چیئرمین جیسے گھر سے اعزاز بخشا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جس چیز کو سمجھتے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری محنت کو سمجھا۔ بہرحال اس پروگرام کو منعقد کرنے میں خاص کر شہر کے اور شہر کے اطراف سے لوگوں کو مدعو کر کے آج انہوں نے اردو کے موقع پر لوگوں کو راغب کیا، تاکہ اردو کے تعلق سے لوگوں کے اندر محبت، الفت اور جذبہ پیدا ہو، جس کے لیے وہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اس سے زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں جناب عارف صاحب اور شہنواز صاحب۔ میرے خیال سے میزبانی کا نظام ان کی طرف سے رکھا گیا ہے، چاہے جزوی طور پہ ہو یا کلی طور پہ ہو، وہ بھی بحیثیت میزبان اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، جو ہمارے لیے باعث ستائش ہے۔ میں ان تمام جو منچ پر لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر جو ہے علم اور تعلیم کے شعبے میں اپنا ایک بڑا نام پیدا کرنے والے لوگوں کے بیچ میں علمی خدمات کو انجام دینے والے اس پروگرام کے صدر جناب ڈاکٹر نعمان صاحب اور قاری ضیاء صاحب اور یوسف صاحب، ساجد صاحب جو آج میں سے تشریف لائے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بھائی ارشد صاحب، شیخ صاحب جو اردو کے ترجمان ہیں، وکیل صاحب ماشاءاللہ جو بہت تعلیمی ادارے کو جس کی ذمہ داری سے ان کو نبھا رہے ہیں، جناب سلمان صاحب جن کی صحبت میں رہ کے بہت کچھ سیکھنا بھی ملتا ہے، اور جناب ساجد شیروانی صاحب کی باتوں کو سن کر
समझ में नहीं आया कि वो उर्दू में गालिब और जनाब बुआरी इकबाल साहब के मुकम्मल तर्जुमान नजर आए। मैं उनकी बातों से मुत्तफिक होते हुए अपनी बात को कहना चाहूँगा। बहुत सारे शरकाए मजलिस हैं, हमारे साथी साहब जो हमेशा हर महीने उनकी टीम उर्दू के ताल्लुक से प्रोग्राम रखती है, बादशाह साहब जो उर्दू की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत सारे लोग जो शरकाए मजलिस हैं आज इस मजलिस में शरीक होकर उर्दू अदब को तकनीक बख्शने की कोशिश की है। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बच्ची फहीम ने कहा कि वाक़ई अगर उर्दू के साथ कोई बदसलूकी कर रहा है तो उसका वाहिद जिम्मेदार एक मुसलमान है जो उर्दू के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी कर रहा है। उसके बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम मुसलमानों को उठाना चाहिए था, हम तमाम लोग उन तमाम चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे घरों में इनकलाब नहीं आता, हमारे घरों में उर्दू टाइम्स नहीं आता, हमारे घरों में शायराना नहीं पढ़ी जाती, हमारे घरों में जो उर्दू की किताबें हैं उर्दू इल्म के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से वो बच्चों और बच्चियों को दूर रखा जाता है। इसके वाहिद जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि उर्दू की तरबियत है या उर्दू ज़बान की बका के लिए जो इब्तदाई कोशिश हो सकती है वो घर से ही मुमकिन हो सकती है। घर यानी माँ के पेट से या माँ के ताल्लुक से शुरू हो सकती है। और सबसे ज़रूरी मुझे जो समझ में आता है, बहुत मुश्किल है कि आप उर्दू की बका के लिए हम लोग किस तरह से और कैसे कैसे इक़दाम उठाएं। ऐसे में सबसे ज़रूरी जो मुझे समझ में आता है कि मस्जिदों में जो है जो मकतब का निज़ाम चलाया जाता है वो निज़ाम कहीं नहीं कहीं हमारी कोशिश को तकमील बचता है। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ मकतब में मस्जिदों में जाती हैं तो उर्दू ज़बान उर्दू सीखती हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। वहीं से शुरुआत होती है आगे तक जाने के लिए। अगर बच्चियाँ हमारी उर्दू से वाबस्तगी रखेंगी तभी मुमकिन हो सकता है कि हमारा माशरा अदब हो, बशऊर हो, ये तमाम चीज़ें तभी मुमकिन हो सकती हैं। उर्दू के ताल्लुक से लड़कियों को खासकर जोड़ा जाए, उनको मंसूब किया जाए। बहुत सारे लोग अपने अपने अखबार से उर्दू की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। वो तमाम लोग जो उर्दू की खिदमत में चाहे कासमी साहब को तमाम जो लोग स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, मदारिस चला रहे हैं, सारे लोग कहीं न कहीं अपने अखबार से पोषण हैं। सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दो तालीम की बेहद ज़रूरत है। अगर जनाब वकील साहब डॉक्टर नौमान साहब असली तालीम को की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, सारे शिवानी साहब, तो वो भी तो बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे आज जो है असली तालीम से भी बहुत दूर है और मदारिस जो है और मकातिब जो है इनकी बड़ी खिदमत को नज़रअंदाज तो नहीं किया सकता। हमारे ज़िले के बड़े मदारिस जो हैं, चाहे वही मदरसा हो चाहे मदरसा हो, इनके बच्चे तो हमारे इलाके में हर मौके पर हाजिर होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा इस्लाम जिंदा होता है, उर्दू अदब जिंदा होता है, उर्दू ज़बान जिंदा होती है। तो तमाम लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं फिर ज़ाती एतबार से आप तमाम लोगों की तमाम कोशिशों में हमेशा शामिल हाल रहूँगा। आपकी तंजीम का कोई भी चाहे सदर हो चाहे कोई भी हुक्म हो, मुझे भी किसी तरह का हुक्म देगा, मैं हमेशा आपकी खिदमत में शाना बशाना हर एतबार से शरीक रहूँगा। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपके अज़्म का भी और आपके जो आपने फैसला लिया और जो हमारे लिए काम करने की बात की कि उर्दू के सिलसिले से जो काम रहेगा आप ताउन करेंगे, आप साथ रहेंगे। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी सदर मोहतरम ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में उस नाम को खोल दिया जाए जो आपसे मुखातिब था और वो नाम आ चुका है हमारे पास, लेकिन ऐलान अजहर कासमी साहब की ज़बान से और आपकी मौजूदगी में उसको एजाज से नवाजा जाएगा। और ये पहला एजाज होगा तो इंशाअल्लाह हर साल जारी रहेगा, क्योंकि अगर काम तालीम पर करने वाला कोई है तो उसके सिलसिले से बात होनी चाहिए और उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आइए अजहर कासमी साहब आप ऐलान कीजिए और अपने आज के जिसको आपको एजाज देना है उसको एजाज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रधान आसिफ साहब। सबसे पहले मैं तशरीफ फरमा अपने तमाम मेहमानों का फलाह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और आप तमाम सामीन किराम और तमाम शहराए किराम का मैं खैर मक़दम और इस्तकबाल करता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम इसकी सरपरस्ती मोहतरम जनाब अली जनाब
अनवार जौनपुरी साहब को फरमाना था, मगर वो सेहत की खराबी की वजह से हमारे बीच नहीं आ पाए। तो मैं उनके शेर से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जो भी उर्दू को मिटाने में लगे हैं सुन ले, जो भी उर्दू को मिटाने में लगे हैं सुन ले, हमने उर्दू को बचाने की कसम खाई है। अल्लाह ताला हमारे जसद को सेहत और आफियत बख्शे। और मैं सभी का इस्तेमाल और खैरमकदम, ये प्रोग्राम फलाह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से है और ये हमारी तरफ से भी, और जनाब मदन हसन साहब, दोनों लोगों का मुश्तरका ये प्रोग्राम है, जिसके सरपरस्त भी आप हैं डॉक्टर नोमान खान साहब, जिसके सरपरस्त है फलाह वेलफेयर ट्रस्ट का। जैसा कि मुझे बुलाया गया कि आज हमें एक नाम का ऐलान करना है जो तालीम के मैदान में काम कर रहा है। यह हमारा प्रोग्राम, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर लगी है, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की तस्वीर लगी है। 9 नवंबर डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश है। अल्लामा इकबाल साहब ने नौजवानों को परवान चढ़ने की, उड़ान भरने की का पैगाम दिया, मैसेज दिया, हमेशा गैरत दिलाई कि तुम क्या हो, तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ होना चाहिए। ये मैसेज और पैगाम अल्लामा इकबाल ने कौम के बच्चों को अपनी शायरी के जरिए से दिया। इसलिए ऐसी शख्सियत को हमें याद करना बहुत जरूरी है। दूसरी वही शख्सियत जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, जिन्होंने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। और आज उम्मीद की देर है कि आज जो आपको अकलीती शोबा दिखाई दे रहा है या अकलीती इदारे दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है कि जो पूरे मुल्क में दर्जनों इदारे अकलीती इदारे चल रहे हैं। तो ऐसी दो शख्सियतों को याद करना बहुत जरूरी है। और आप सभी हज़रात जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, जो यहाँ पर इकट्ठा है, मैं सभी का इस्तेमाल और खैरमकदम करता हूँ। ये फलाह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिया तो ये हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों ने मशवरा किया कि इस बार ऐसा कुछ किया जाए कि जिस प्रोग्राम का कोई मकसद निकले, सिर्फ हम लोगों को बुला लें, शेर व शायरी हो, तकारीर हो, बात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये तय किया गया कि इस बार यौम तालीम के मैदान में जिस शख्स ने भी खिदमत अंजाम दी हो, वो शख्स जो जीरो से शुरू कर रहा हो, एक वो शख्स है जो आला पायदान पर पहुंच चुका है, उसकी तो अलग बात है, मगर वो शख्स जो जीरो से शुरुआत जिसकी हो रही है, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आज हमारे मंच पर ज्यादातर वो तमाम मेहमान मौजूद हैं जो कहीं न कहीं प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। जनाब साजिद शरवानी साहब और डॉक्टर नोमान खान साहब, ये तमाम जो लोग हैं, जनाब मोहतरम जिया साहब, ये लोग हैं जो प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। हज़रात, प्रोग्राम का इनेकाद चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मशक्कत लगती है और किसी एक शादी के इंतजाम से कम नहीं होता। मेरे हिसाब से क्योंकि मैं कई कार्यक्रम करा चुका हूँ, इसलिए मुझे ये एहसास है कि उन लोगों की हौसला अफजाई जरूरी होनी चाहिए जो छोटे या बड़े प्रोग्राम कराते चले आए। तो आज हमारे बीच तालीम के हवाले से इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा और जिंदगी रही। अगले साल यौम उर्दू के हवाले से वो नौजवान जो उर्दू में काम कर रहे हैं उन्हें फलाह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इनाम से नवाजा जाएगा। मगर आज तालीम के मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले एक ऐसे शख्स का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जिसे आज 5100 रुपए का इनाम मोहतरम जनाब डॉक्टर नोमान खान साहब की तरफ से दिया जाएगा और एक मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट फलाह वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। ये जो इनाम है, ये सर्टिफिकेट है, ये मौलाना अबुल इरफान खान नदवी रिवाज से भी मंसूब है। मौलाना अबुल इरफान खान नदवी जो मोहतरम जनाब डॉक्टर नोमान खान साहब के वालिद थे, नदवा के मोहतरम थे, जनाब नदवा आसिफ साहब ने उनके ताल्लुक में बता भी दिया है। तो वो एक ऐसा शख्स जो तालीम के मैदान में काम कर रहा है। और अगर मौलाना अबुल इरफान खान नदवी के हवाले से अगर बात की जाए तो जनाब नोमान खान साहब को छोड़कर अगर किसी शख्स ने भी मौलाना अबुल इरफान खान नदवी के नाम को जोड़ने में जिक्र किया है तो फिर है मौलाना इम्तियाज अहमद नदवी, जो हमारे बीच है। आप सभी समझ गए होंगे कि आज का जो ये इनाम है, ये एजाज है मौलाना अबुल इरफान खान नदवी, वो मोहतरम जनाब इम्तियाज नदवी साहब को दिया जाएगा। और आप सभी तालियों के साथ उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि मौलाना इम्तियाज नदवी साहब जो एक मदरसा चलाते हैं दीदारगंज के पास, उसके अलावा कई मकतब आपकी ज़ेरे निगरानी चलता है और मौलाना अबुल इरफान खान
खान नकवी के हवाले से सबरात में आपको एक लाइब्रेरी भी है, जिन्होंने लाइब्रेरी उस वक्त कायम की कि जब मतलब जनाब नुमान खान साहब जानते भी नहीं थे कि मौलाना इम्तियाज नकवी है कौन, जिन्होंने मेरे वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी का क़याम किया। कई महीनों बाद बहुत छानबीन के बाद जब मुलाकात हो तब पता चला कि इम्तियाज नकवी साहब जो मदरसा में तालीम हासिल करते थे, उन्होंने ये सोचकर मौलाना इरफान खान नकवी के नाम को जिंदा किया कि एक ऐसी शख्सियत जो जौनपुर में गुमनाम है। और मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे हुए ज्यादातर लोग उनके नाम से मौसूम नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे उनके बारे में। तो इम्तियाज नकवी साहब ने उनके नाम को जिंदा किया और आज पहला अवार्ड मेरा मौलाना इरफान खान नकवी के नाम से मौसूम है। तो मैं ये अवार्ड मोहतरम जनाब डॉक्टर नुमान खान साहब के हाथों मौलाना इम्तियाज नकवी साहब को देना चाहूंगा, और जो 5100 रुपए नकद और एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो के साथ है। और मैं दरखास्त करूंगा इम्तियाज नकवी साहब आपकी शुक्रिया। और हमारे आज के मेहमान दानिश ज़िया साहब की तरफ से इस इनाम को दूना किया जा रहा है, वो 5100 से बढ़ा के 10,100 रुपया, क्योंकि तालीम के मैदान में काम इम्तियाज नकवी का है। तो वो आगे आप अपने हाथ से देंगे। दोनों लोग सदर मोहतरम और मेहमान खुशनुसी की तरफ के साथ हमारे अरशद कुरैशी साहब, शेखू साहब, वकील साहब आप आए, और वहीं आगे से साजिद खान साहब, सरफराज खान साहब, हमारे डाइस के अजहर काफी साहब, ये तमाम लोग जो हैं, ये सब लोग नुमान भाई बीच में पहुंचिए। आप दानिश ज़िया साहब आप बैठिए, बीच में पहुंचिए। मैं वहां बैठिए, वहां पे दे दीजिए, रस्म नहीं है, एक तरह से भी हौसला अफजाई है दानिश ज़िया साहब और नुमान साहब की तरफ से। उसके बाद ताकि इस मैदान में इसका सिलसिला यूं रहे कि आगे भी लोग तालीम की फील्ड में काम करें और अपनी बात को आगे बढ़ाते रहें। मैं चाहूंगा कि दानिश ज़िया साहब, साजिद साहब और बीच में इम्तियाज साहब, अरशद कुरैशी साहब, शेखू साहब, ये तमाम लोग मोहब्बतों के प्रोग्राम में पैसे की अहमियत कम है, हौसला अफजाई है। मैं रहमान साहब कहाँ है हमारे बीच में, सामने से महफूज साहब, ये तमाम हमारे मेहमान आए और ये एक रस्म है, मोहब्बत है। आइए रमा साहब, आइए रमा साहब आइए, आप आगे आइए। आप इस तंजीम के सरपरस्त हैं, आपकी भी मौजूदगी रहे। और ये कैमरे में कैद होने वाला